वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान जो गुरु प्यारे गुरु सवारे गुरमुख जनों, आप सारिਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਗੁਰਮਤਿ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਹਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜਾਂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜਾਂ ਭਾਵ ਅਰਥ ਡੂੰਘੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ 94 ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦਾ, ਅੱਜ ਹਮਾਰੀ गोमती तीर जहां बसे पीतंबर पीर, वाह वाह क्या खूब गावता है, हर 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 का नाम मेरा मन भावता है। ये रहाव दी पंक्ति है, वाह वाह क्या खूब गावता है, जिथे मुख तुरा है शब्द का। इस शब्द की प्रेजेंटेशन विचार वीर MP सिंह जी आप जी नाल साझी कर रहे हैं। मैं वीर MP सिंह जी को बेनती कर रहा हाँ कि अज इस शब्द की विचार आरंभ कर वीर MP सिंह जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। करता पुरख वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਿਆ ਖੂਬ ਗਾਵਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗਾਇਨ ਸਰਵਨ ਕਰੀਏ ਜੀ। वाह वाह क्या खूब गावता है, वाह वाह क्या खूब गावता है, हर का नाम मेरा मन पावता है, हर का नाम मेरा मन पावता है। वाह वाह क्या खूब गावता है, हर का नाम मेरा मन पावता है, हर का नाम मेरा मन पावता है। हज हमारी गोमती तीर, हज हमारी
जहाँ बसे पीतम्बर पीर, जहाँ बसे पीतम्बर पीर। वाह वाह क्या खूब गाता है। नारद सारद करे खवासी, नारद सारद करे खवासी। पास बैठी बीबी कमला दासी, पास बैठी बीबी कमला दासी, पास बैठी बीबी कमला दासी। वाह वाह क्या खूब गाता है। हर का नाम मेरे मन पावता है। कंठे माला जेवारा, कंठे माला जेवारा। सहंस नाम ले ले करो सलाम, सहंस नाम ले ले करो सलाम, सहंस नाम ले ले करो सलाम। वाह वाह क्या खूब गावता है। हर का नाम मेरा मन पावता है। कहत कबीर राम गुण गावो, कहत कबीर राम गुण गावो। हिंदू तुरक दो समझाओ, हिंदू तुरक दो समझाओ, हिंदू तुरक दो समझाओ। वाह वाह क्या खूब गावता है। वाह वाह क्या खूब गावता है। हर का नाम मेरा मन पावता है। हर का नाम मेरा मन पावता है। हर का नाम मेरा मन पावता है। शब्द दी राव दी पंक्तियां ਹਨ। वाह वाह क्या खूब गावता है। हर का नाम मेरा मन भावता है। तो ये पंक्ति पढ़ के गल इंज समझ आती है। कबीर जी शायद किसी थर्ड पर्सन की गल कर रहे हैं। सवाल पैदा होता है कि वाह वाह क्या खूब गावता है, क्या खूब गांदा है, कौन कौन गावता है। तो सिर्फ इको ये पंक्ति पढ़ के गल स्पष्ट नहीं होंगी। ਉਹਦੇ वास्ते दूसरी पंक्ति ਜਿਹੜੇ ਰਾਓ ਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। पर जे शब्द की आखिरी पंक्ति
ਆਖਰੀ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵੋ, ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਦੋ ਸਮਝਾਵੋ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਾਵਤਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਹੀ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਿਆ ਖੂਬ ਗਾਵਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਾਵਤਾ ਹੈ। तो ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਇਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਿਆ ਸੋਹਣੀ ਖੂਬ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਾਵਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। तो ਇਹ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਅੰਦਰੋਂ ਫੁੱਟ ਫੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਂਝ ਵੀ ਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੋਕ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਿਫਤ ਵਡਿਆਈਆਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਬਿਨਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਕੀਤਿਆਂ ਦੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਿੰਗਰ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭਜਨ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਗੀਤ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜੋੜ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਅਫਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਫਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਾਹ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਦੌਲਤ ਵੀ ਮਿलेगी, पैसा भी मिलेगा। लेकिन कबीर जी दे वास्ते कोई ऐसी इशू नहीं है, कोई ऐसा कारण नहीं है। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਖਾਣ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਮਨ ਸਵਾਦ ਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਉਹ ਖਾਣੀਆਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਦ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਆਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣੀ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। तो इसे तरीके ही ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਣੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਕੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਵਰ ਸਾਧ ਚਖ ਸਗਲੇ ਦੇਖੇ ਮਨ ਹਰ ਰਸ ਸਭ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਜੀਓ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਵਾਦ ਚੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਏ ਹਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੋਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਿੱਠਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਦ ਨਾਮ ਰਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿੱਕੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਇਹ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਹ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਸਮਾਦ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਸ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਾਹ ਸਾਡਾ ਮਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹੇਗਾ
ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਮੰਨ ਜਾਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੀ ਸਿਫਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਕਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕਿਤੇ, ਉਸ ਦੀ ਅਕਲ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਦਿਮਾਗੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਵਾਹ। ਇਹ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਿਆ ਖੂਬ ਗਾਵਤਾ ਹੈ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਉਸੇ ਦੀ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਬੇਅੰਤ ਸਿਫਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਾ ਲਵਾਂ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇਗੀ ਕਿ ਅਵਰ ਸਾਧ ਚਖ ਸਗਲੇ ਦੇਖੇ, ਮਨ ਹਰ ਰਸ ਸਭ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਜੀਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਿੱਠਾ ਹਰੀ ਦਾ ਰਸ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨ ਜੋ ਗਾਏਗਾ ਉਹ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਦੀ ਉਹ ਵਿਸਮਾਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਬਣਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। तो राहो दे बन दे विच कबीर जी ने ऐसी अवस्था का जिक्र किया है कि वाह वाह क्या खूब गावता है, हर का नाम मेरा मन भावता है। वो मन कबीर जी दे मन जड़ा है वो वाकई प्रभु दे प्यार दे विच रंगिया होया है, उन्होंने चंगा लगता है। हुण शब्द दे पहले पदे दे विच कबीर जी ने फरमाया है, क्योंकि मेरा मन प्रभु के प्यार दे विच गिझा होया है, प्रभु के प्यार विच भिजा होया है, तो इसलिए मेरे उस मन दे विच ही वो प्रभु जी वसदे हैं। वो कहते हैं कि हज हमारी गोमती तीर, जहां बसे पीतंबर पीर। गल तो कबीर जी कर रहे हैं प्रभु की याद मेरे हृदय च वसन दी, अपने मन के बारे गल कर रहे हैं। पर ये शब्दावली कुछ उन्होंने ऐसी वरती है कि पढ़ने वाले लोग कई बड़े कन्फ्यूज हो जाते हैं। ਵੱਖ-ਵੱਖ टीकाकारां ने इस पदे दे ਆਪੋ अपनी समझ के मुताबिक ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ अर्थ ਕੀਤੇ ਹਨ। फरीदकोटी टीके वालियां ने जो जी उन्होंने शब्दावली है, कहते हैं जी गो वेदों में है मति जिनकी, उन्होंने गोमती के अर्थां नूं तोड़ के गो जमा मति दो टोटे कर देते हैं। वेदों में है मति जिनकी, तिन संतों के पास जाना, यही हमारा हज यात्रा है। जिन संतों में पीतंबर विष्णु पीर बसता है। उन्होंने पीतंबर के अर्थ विष्णु कर देते हैं। एक होर टीकाकार ने जी उन्हें जिस तरह उन्होंने समझ आई, उन्हें अर्थ किए हैं कि मक्के की यात्रा साडे लिए गोमती नदी के कंढे ते ही हो जाती है, जिथे साडा पीर भाव पीले कपड़ियां वाला कृष्ण वसदा है। ਹੁਣ अर्थ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਲੋਕੀ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੀਆਂ ਹੈ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੀਰ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਕੌਣ ਵਰਤਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਭਗਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪੀਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਪੀਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੀਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੀਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ इस तरह ना लगता है कि भाई ओपरे ओपरे लफज पढ़ के ते जो जिसनों समझ आया वो अर्थ कर देता है। पर शब्द के अर्थ करन लगे हाँ, जो शब्द का मुख भाव हुंदा है उसनों जरूर ध्यान च रखना चाहिए है। खैर जो असल अर्थ बनते हैं उस तो पहला एक होर अर्थ देख लेंगे किसी होर तीसरे टीकाकार दे हैं कि हज यात्रा साडी गोमती, उन्होंने गोमती के अर्थ करते हैं संत महापुरख दे तीर समीप जाना है, भाव सत्संग या साडी तीरथ यात्रा है जिथे पीतंबर धारी चैतन्य गुरु विराजमान होया है। उन्होंने पीतंबर के अर्थ चैतन्य गुरु यानी रामानंद जी वाले पासे कर देते हैं। तो वक्खो वक्रे अर्थ वक्खो वक्रे टीकाकारां ने कीते हैं जो किसी भी तरीके शब्द के मुख भाव के नाल जुड़ते ही नहीं हैं। कोई पीतंबर विष्णु नूं कह रहा है, कोई पीतंबर कृष्ण जी नूं कह रहा है, कोई पीतंबर रामानंद जी नूं कह रहा है, पर यह है किस दी गल हो रही, कबीर की गल किस दी कर रहे हैं। तो जो इसके अर्थ व्याकरण के नियमों के अनुसार अते जो प्रोफैसर साहब सिंह जी के लिखे हुए दर्पण के अंदर जो अर्थ हैं कि साडा हज अते साडा गोमती का तीर या गोमती का कंढा ये मन ही है।
ਔਰ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮਨ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਂ ਬਸੈ ਪੀਤੰਬਰ ਪੀਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਵਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੀਤੰਬਰ ਪੀਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਸੈ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਵਚਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਜਹਾਂ ਬਸੈ ਪੀਤੰਬਰ ਪੀਰ, तो बहुवचन की क्रिया किसी एक आदमी वास्ते तो वरती नहीं जा सकती। तो इस करके रामानंद जी वास्ते तो बसै पीतंबर पीर वैसे ही नहीं टुकदा। जे कृष्ण जी वास्ते वरतो वो भी एक अवतार है, विष्णु भी एक अवतार है। तो खैर जिस वजह करके बसै की क्रिया कबीर जी ने वरती है प्रभु दे वास्ते, वो है आदर सूचक। ਜਦੋਂ भी ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰੀਤ ਹੈ ਕਿ ਐਸੀ ਹਸਤੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਵਚਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਆ ਗਏ ਹਨ ਇਹ ਬਹੁਵਚਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ ਸੂਚਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਇਹ ਬਹੁਵਚਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। तो खैर कई लोग ये भी कह सकते हैं जी कि सत्कार वजों ही रामानंद जी या कृष्ण जी या विष्णु जी वास्ते बसै वाली बहुवचन की क्रिया वरती गई है, पर निरा वही इतराज नहीं है। इतराज होर भी हैं कि उन्होंने चीज़ों का बाकी दे पंक्ति के नाल और शब्द के मुख भाव के नाल कोई जोड़ है ही नहीं। जे कृष्ण जी की गल करिए तो पीतंबर लफज थोड़ा उन्होंने नाल जुड़ता है, क्योंकि वो पीले कपड़े धारण करिया करते सन, पर गोमती नदी के नाल कृष्ण जी का किसी दूर नेड़े का भी संबंध नहीं है। गोमती नदी वगदी है लखनऊ के नेड़े, कृष्ण जी सन या द्वारका विच या जदों कौरवां पांडवां की लड़ाई के सुलझाण के वास्ते इन्हां दे कोल हस्तिनापुर या कुरुक्षेत्र इस पासे रहे ने। तो गोमती नदी के नेड़े कभी वो गए भी नहीं। उन्होंने तो जदों भी कोई गल आती है तो जमुना नदी की गल आती है। सो गोमती का कृष्ण जी के नाल कोई दूर नेड़े का संबंध भी नहीं है। फिर जो असली कहानी है वो शब्द के अखीर में जाके वैसे ही स्पष्ट हो जाती है कि ਜਿਹੜੇ अर्थ इन्हां उपरले ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ टीकाकारां ने कीते हैं, जिहदे विच उन्होंने ये गल कीती है कि साडा हज साडी गोमती है। भाव की है कि वो हज नूं निगेट कर रहे हैं ते गोमती नूं उच्चा चुक रहे हैं, जिहड़ा तीरथ है। तो जिवें जिन्ने भी ये तीनों अर्थ सामने नज़र आ रहे हैं, इन्हां तिन्नां दे विच ये गल इस तरह कन्वे की जाती है कि मक्के की तो कोई वैल्यू नहीं है, साडे वास्ते गोमती का किनारा जिहड़ा ना वो इंपॉर्टेंट है। साडे वास्ते हज जिहड़ी है वो गोमती ते जाण नाल ही पूरा हो जाता है। पर असल विच ऐसा कोई भाव कबीर जी के शब्द विचों मिलता ही नहीं है। तो थोड़ी तफसील नाल इस गल नूं समझण दा यतन करिए। एक कबीर जी का शब्द है राग भैरों के अंदर, ਉਹਦੇ ਚ देखो कबीर साहब कहते हैं कि उलट जात कुल दो बिसारी सुन सहज मैं बुनत हमारी हमरा झगड़ा रहा न को पंडित मुल्ला छाड़े दो। इस शब्द का राव का बंद है। बुन बुन आप पैराऊं जा नहीं आप कहाँ हुए गाँव पंडित मुल्ला जो लिख दिया छाड़ चले हम कछु न लिया हृदय इखलास निरख ले मीरा आप खोज खोज मिले कबीर। तो शब्द के राव दे विच कबीर जी की कह रहे हैं, ये भैरों राग का शब्द है कबीर जी का कि हमरा झगड़ा राह न को पंडित मुल्ला छाड़े दो। उन्होंने निरा मुल्ला नूं नहीं छड्डिया, पंडित भी छड्डिया है। और अगे भी तीसरे पदे च भी कह रहे हैं कि पंडित मुल्ला जो लिख दिया छाड़ चले हम कछु न लिया। उन्होंने वास्ते पंडित मुल्ला दोनों बराबर ने और दोनों ही मनन योग नहीं हैं। उन्होंने रिजेक्ट कर दिते ने, छड़ दिते ने दोनों।
उन्होंने दोहरा के गल आखी है कि जो कह रहे हैं पंडित मुल्ला असी वो सब गल छड़ दी है, असी उहदे चों कुछ भी नहीं लिता। तो सोचण वाली गल यह है कि जे इस शब्द इन्ने स्पष्ट अर्थां दे स्पष्ट लफ्जां दे विच कबीर जी कह रहे हैं कि मैं पंडित मुल्ला दोनों की गल नहीं मनदा, तो पंडित दे आखे लग के वो तीरथ इशनान या तीर्थां दे जाके कोई धर्म कर्म करन नूं किवें चंगी गल समझ सकते हैं? नामुमकिन है। ते ना ही वो मुल्लां दे आखण ते हज यात्रा करन दी कोई गल स्वीकार करनगे। तो फिर वो ये गल किवें कह सकते हैं कि भी मेरा हज जिहड़ा है ना वो गोमती दे किनारे हो जाता है। ये नहीं हो सकता कि भी वो मुल्लां नूं ते रिजेक्ट कर देण ते पंडित दी गल मन लैण। उन्होंने तो दोनों नूं छेड़िया है। और गुरु अर्जन पातशाह ने जिन्हां ने कबीर जी की बाणी संपादना के दौरान दर्ज की है गुरु ग्रंथ साहिब विच अपरोप्रीएट जगह के उत्ते, उन्हां दा ही भैरव राग दे विच एक शब्द है जो ध्यान नाल सुनना मंगदा है। इसे शब्द दे परथाए भैरव राग दे विच गुरु अर्जन पातशाह का एक शब्द है। आओ एक बार वो शब्द सरवण करिए। व्रत ना रहूं न महरम दाना, तिस सेवी जो रखे निदान। एक गोसाई अल्लाह मेरा, एक गोसाई अल्लाह मेरा, हिंदू तुर्क दुहा ने बेरा। हज का बैजाऊं ना तीर्थ पूजा, एको सेवी अवर ना दूजा। पूजा करो ना निवाज गुजारो, एक निरंकार ले हृदय नमस्कारो। ना हम हिंदू ना मुसलमान, अल्लाह राम के पिंड परान को कबीर किया बखाना। गुर पीर मिल खुद कसम पछाना। गुर पीर मिल खुद कसम पछाना। ये शब्द का सिरलेख है पैरों महला पंजवां घर पहला। आप गुरु अर्जन पातशाह का राग पैरों में उच्चारण किया हुआ है ये शब्द है। और आप जी ने हुणे शब्द के आखिरी बंद में सुनिया है। आखिरी पदे च कहो कबीर ए किया बखाना, गुर पीर मिल खुद खसम पछाना। शब्द गुरु अर्जन पातशाह का उच्चारण किया हुआ है और कवि छाप की जगह के उत्ते कहो नानक की जगह ते लफज आ रहा है कहो कबीर ए किया बखाना। उस सवाल पैदा होता है कि ऐसा क्यों है? तो इसकी वजह यही है कि ये जो शब्द असी पहला कबीर जी का भैरव राग वाला पढ़िया है उसे दे परथाए गुरु अर्जन पातशाह ने शब्द उच्चारण किया है उस शब्द के भाव नूं होर खोल के समझाने दे वास्ते।
और इस शब्द ਵਿੱਚ गुरु अर्जन पातशाह ने गल की है राह के अंदर कि एक गुसाई अल्लाह मेरा वो सृष्टि का साई सृष्टि का मालक अल्लाह मेरा इको एक है ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰ ਲਵੇ ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਦੋਹਾਂ ਨਿਬੇੜਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਭਾਵ ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨੌਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਫਿਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵਰਤ ਨਾ ਰਹੋ ਨਾ ਮਾਹ ਰਮਦਾਨਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਮਜ਼ਾਨ तो ये मुसलमान इस रमज़ान के महीने च सारा दिन भुखे रह के पानी अन्न पानी कुछ नहीं ग्रहण करते इसनों बड़ा पवित्र महीना मनते हैं तो ये उन्हों दी है हिंदुओं के विच वर्त रखन के कई सारे दिन हैं पर कबीर जी के विचार नूं उन्हों की फिलासफी नूं समझाते हुए गुरु अर्जन पातशाह कह रहे हैं कि तिस सेवी जो रखा है निदान तो भाव हुंदा है अंत नूं जिहड़ा अंत वेले रख लैंदा है ਉਹਦੀ मैं सेवा करदा उसे ਨੂੰ ही पूजदा हाँ फिर होर किहड़े-किहड़े कर्म ने जिन्हां दी मैनूं कोई जरूरत नहीं है हज काबे जाओ ना तीरथ पूजा ना मैं हज काबे जांदा हाँ ना मैं तीर्थां ते जाके पूजा करदा हाँ ये ना लफज जिहड़ा है ये दिली दीपक दे वांग दोनों पासे लगदा है हज काबे जाओ ना तीरथ पूजा ना मैं हज काबे जांदा हाँ ना तीरथ दी जाके पूजा करदा हाँ एको सेवी मैं एको दी सेव करदा हाँ एको नूं अवर ना दूजा होर किसी दूजे नूं मैं सोचदा भी नहीं ਉਹਦੇ बारे फिर अगे कहंदे ਹਨ पूजा करो ना निवास गुजारो ना मैं पूजा करदा हाँ हिंदू ढंग दे नाल ना मुसलमान ढंग दे नाल निवास गुजारदा हाँ मैं की करदा हाँ एक निरंकार ले हृदय नमस्कारो अपने हृदय विच एक उस निरंकार नूं जिहदा कोई आकार नहीं है जो सर्व व्यापक है मैं ਉਹਨੂੰ अपने हृदय विच टिका के उसे नूं ही नमस्कार करदा हाँ ना हम हिंदू ना मुसलमान अल्लाह राम के पिंड प्राण मेरा पिंड शरीर अते प्राण उस अल्लाह राम जो इको एक है जो सर्व व्यापक है उसनों किसी नाम नाल भी याद कर लो चाहे अल्लाह कह लो चाहे राम कह लो उसे दे ही दिते हुए हैं ना मैं हिंदू हाँ ना मैं मुसलमान हाँ तो अखीरली पंक्ति दे विच गुरु अर्जन पातशाह ने कबीर जी दे वल्लों ये गल आखी है कि कबीर ये गल का व्याख्यान कर रहा है कि मैं तो गुरु पीर चाहे उन्होंने गुरु कह लो चाहे पीर कह लो जिन्हें मैंने जीवन का सही राह दिता है मैं अपने अंदर खुद दे अंदर अपने अंदरों ही उस खसम मालक की पछाण की है तो कबीर जी का शब्द असी पहला पढ़िया है भैरो राग वाला जिदे परथाए ये गुरु अर्जन पातशाह का शब्द है उत्थे कबीर जी ने कहा कि हमरा झगड़ा रहा ना कहू पंडित मुल्ला छाड़े दो पंडित मुल्ला जो लिख दिया छाड़ चले हम कछु ना लिया तो गुरु अर्जन पातशाह ने भी कह दिता कि हिंदू तुर्क दोहा निबेड़ा तो कबीर जी के वास्ते ना हिंदू ज्यादा सियाणा है ना मुसलमान ज्यादा सियाणा है वो एक अकाल पुरख एक सर्व व्यापक राम दे ही सेवा करते हैं पूजा करते हैं उसे नूं ही अपने हृदय विच टिका के नमस्कार करते हैं उन्होंने वास्ते हज की यात्रा करनी तीर्थ यात्रा करनी कोई मैंने नहीं रखते सो इस करके उन्होंने वास्ते हज हमारी गोमती तीर केड़ी है वो हज भी वो गोमती का तीर किनारा तीर्थ भी केड़ा है जहाँ बसे पीतंबर पीर वो मेरा मन है जिथे प्रभु की याद वसदी है मेरे मन के अंदर प्रभु वसदा है मेरे वास्ते मेरा मन ही हज है मेरा मन ही गोमती का तीर्थ है तीर्थ सारे तीर्थ उत्थे ही ने हज की यात्रा भी मेरे मन के अंदर ही है जिथे मेरे प्रभु जी की याद वसदी है जहाँ बसे पीतंबर पीर वो प्रभु जी वस रहे पीतंबर पीर प्रभु अकाल पुरख वास्ते कबीर जी ने वरत्या है किसी देवी देवते किसी होर पीर वास्ते नहीं वरत्या क्योंकि एक निरंकार ले हृदय नमस्कारों आप उन्होंने बारे गुरु अर्जन पातशाह ने गल स्पष्ट करके समझाई है सो इस पंक्ति के अर्थ हैं कि साढ़े वास्ते हज ते गोमती तीर्थ यात्रा आदि सब मेरे मन के अंदर ही है जिथे प्रभु जी वस रहे हैं दूसरे पदे विच हुण कबीर जी आखते हैं कि नारद शारद करै खवासी पास बैठी बीबी कवला दासी नारद भगत ते शारदा देवी सरस्वती देवी नूं कहा जाता है जिन्हों आम तौर पर
विद्या दी देवी, संगीत दी देवी भी करके दिखाया जाता है। और ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਵੀ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਸੰਗੀਤ ਉਹਦੇ ਪਾਸੋਂ ਹੀ, ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਰਸਵਤੀ ਦੇਵੀ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸਰਸਵਤੀ ਵੰਦਨਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। और गुरमत के अंदर कोई ऐसी वक्खो वक्खरियां देवी देवतियां दी गल नहीं की गई भी एक काम वास्ते एक देवी या देवता लभो, दूजे काम वास्ते दूजी देवी देवता लभो। इत्थे केवल हर काम दा, हर दात वास्ते, हर ज्ञान वास्ते, हर चीज वास्ते इक्को एक अकाल पुरख की ही पूजा का उपदेश किया जाता है। तो कबीर जी की भी मत वही है, वो कहते हैं कि नारद सारद करें खवासी। खवासी का अखरी अर्थ होता है चौबदारी, चौकीदारी, सेवा। ये मेरे मन के अंदर ही उस मेरे जड़े प्रभु जी की याद वसी हुई है, वो मेरे मन तीरथ ते बैठ के नारद ते शारदा देवी भी उस प्रभु की सेवा कर रहे ने, ते नाल जड़ी लक्ष्मी देवी है कवला दासी, कवला जड़ी लक्ष्मी, वो भी नाल बैठी हुई टहलन बन के बैठी है। जिवें जिवें मेड किसी ने रखी होंगी ना फुल टाइम, वो बीबी कवला दासी जी मेड बन के नाल बैठी हुई है, टहलन बन के बैठी हुई है, पास बैठी। तो असल च एक तरस है जो देवी देवतियों के पूजा करने वालियां दे वास्ते कि भाई जिन्हां दी तुसीं पूजा करते हो ना, वो जिहदी मैं पूजा करदा हाँ ओहदे सारे सर्वेंट ने, नारद सारद कवला, ये सब प्रभु की सेवा करने वाले ने, ओहदे दर ते झाड़ू देने वाले। तो इस पदे के अंदर जो कबीर जी के मन के अंदर जो प्रभु का निवास है, पीतंबर पीर जो उन्होंने हृदय च वस रहे हैं, जिन्हों वो चेते करते हैं, जिन्हों जिहदी वो पूजा सेवा करते हैं, उस प्रभु की सेवा करने वाले नारद शारदा देवी अते लक्ष्मी देवी भी ओदियां सेवकां हैं, ओदी सेवा कर रहे हैं। तो फिर कबीर जी होर की कहते हैं अगले पदे के अंदर, कहते हैं कंठे माला जेवा राम सहंस नाम लै लै करो सलाम। कंठे माला जेवा राम, मेरे कंठ दे अंदर जड़ी माला है वो असल विच की है, मेरी जेवा दे उत्ते जो राम दा नाम है वही मेरे कंठ दी माला है। आम तौर ते उन्हां दे आले दुआले जिन्ने भी सनातन मत दे धार्मिक लोग सन या पंडित लोग सन, वो गले दे विच तुलसी दी माला या होर कोई रुद्राक्ष दी माला पांदे सन, जितों प्रगट हुंदा सीगा कि ये लोग धर्मी बंदे हैं। कबीर जी कहते हैं मेरे कंठ च होर कोई माला नहीं है, जड़ा मेरे जिवा दे उत्ते, मेरी जबान दे उत्ते जो राम दा नाम है वही मेरी कंठ दी माला है। मेरी जीभ ते राम दा सिमरन ही मेरे गल दी माला है। ते मैं उस राम दा ही जो मेरे मन तीरथ के उत्ते ते मेरी रसना के उत्ते वस रहा है, मैं उसदे ही हज़ारां नाम लै लै के उसे नूं सलाम करदा हाँ, उसनूं नमस्कार करदा। और ये नहीं है कि भी असीं इक्को इत्थे कंठे माला जेवा राम एक बारी पढ़ के ते इसदे अर्थ इस तरह ही कर दित्ते हैं। इस गल नूं कबीर जी ने अपने श्लोकां दे विच ना बड़े सही ढंग दे नाल खोल के स्पष्ट भी कीता है। कबीर जी दे श्लोकां दे जो पहला ही श्लोक है, कबीर मेरी सिमरनी रसना ऊपर राम, आद जुगादी सगल भगत ताको सुख विश्राम। सिमरनी आव माला, कबीर जी कहते हैं कि मेरी माला केड़ी है, रसना ऊपर राम, मेरी जबान दे उत्ते राम दा नाम जड़ा है वही मेरी माला है, मैं और कोई माला नहीं पहनता। और आज जुगादी सगल भगत, जब तो सृष्टि बनी है जुगां दे आरंभ तो ही सारे भगत वो भी यही नाम सिमरते आए हैं। ਉਹਦਾ नाम जड़ा है वही भगतां दे लई सुख अते शांति दा सोमा है, सुख शांति दा कारण है। तो इसलिए कबीर जी वास्ते कंठे माला जेवा राम, मेरे कंठ दी माला तां राम दा नाम ही है। और उस राम दे हज़ारां नाम लै लै के मैं उस राम नूं ही सिमरदा हाँ, उसे नूं ही नमस्कार करदा हाँ। मेरे वास्ते होर किधरे जाके पूजा करन दी, कोई तीर्थ यात्रा करन दी मैनूं किसी तरह की कोई जरूरत नहीं है। आखिरी पद विच हुण कबीर जी कहते हैं कि कहत कबीर राम गुण गाओ। तो सारे शब्द की गल हो की रही है, राम गुण गाओ जेवा राम,
मेरा मेरा मन गा रहा है, खूब गावता है, हर का नाम मेरे मन भावता है। सारे शब्द विच गल तां प्रभु दी याद दी हो रही है, प्रभु दी सिफतां दी गल हो रही है। तो किधरे रामानंद जी दा, किधरे होर कृष्ण जी दा कोई गल किते आ ही नहीं रही। तो आखिरी पदे च गल कबीर जी ने होर बड़ी खोल के स्पष्ट कर दी है। कहत कबीर राम गुण गावो, हिंदू तुर्क दो समझाओ। कबीर आखदा है कि मैं तां उस हरि दे सर्व व्यापक राम दे ही गुण गांदा हां ते हिंदू ते मुसलमान दोहां नूं समझांदा हां कि मन ही मेरा तीरथ है, मन ही मेरा हज है, जिथे पितंबर पीर रब वसदा है। ते ओदे सहंस नाम ले लै करो सलाम। मैं ओदे हज़ारां ही नाम ले लैके ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੱਜ ਗੋਮਤੀ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੱਜ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ, ਮੈਨੂੰ ਗੋਮਤੀ ਦਾ ਤੀਰਥ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਦੋ ਸਮਝਾਓ? ਜਾਂ ਭੈਰੋ ਰਾਗ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਮੁੱਲਾ ਛਾੜੇ ਦੋ, ਜਾਂ ਪੰਡਿਤ ਮੁੱਲਾ ਜੋ ਲਿਖ ਦਿਆ ਛਾੜ ਚਲੇ ਹਮ ਕਛੂ ਨਾ ਲਿਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਤੁਰਕ, ਪੰਡਿਤ ਤੇ ਮੁੱਲਾ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ ਹਜ ਕਾਬਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਹਜ ਕਾਬੇ ਜਾਓ, ਨਾ ਤੀਰਥ ਪੂਜਾ। ਨਾ ਮੈਂ ਹਜ ਕਾਬੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਨਾ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ। ਬਰਾਬਰ ਬਿਲਕੁਲ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਦੋ ਸਮਝਾਓ। ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਹਜ ਕਾਬੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਵਸਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਗੁਣ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨੋਂ ਬਦੋ ਬਦੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਵਿਸਮਾਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਹੀ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਿਆ ਖੂਬ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਖੂਬ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਂਸ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈ ਕਰੋ ਸਲਾਮ। ਸੋ ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਉਸ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਰਾਮ ਦੇ ਰਮੇ ਹੋਏ ਰਾਮ ਦੇ ਹੀ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਬਈ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਹਜ ਕਾਬੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਓ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਓ। ऐसे रस आएगा, ऐसा विस्माद दी, ऐसी विस्माद दी अवस्था बनेगी कि दिल ही नहीं करेगा कि इस सिफत सलाह दे नालों टुटन ते इसको छड्डन तो दिल नहीं करेगा। बदो बदी मन चो यही फिर आएगा, यही भाव निकलेगा, वाह वाह क्या खूब गा, हर का नाम मेरे मन भावता है। मन ਨੂੰ ਭਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਸਵਾਦ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ, ਹਜ ਯਾਤਰਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝ ਕੇ ਨਿਗੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜੋ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮਝਣਾ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਪਿਤੰਬਰ ਪੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਹਜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗੋਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਆਓ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਪਾਠ ਸਰਵਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜੋ ਅਰਥ ਭਾਵ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਹਰਾਈਏ। आसा हज हमारी गोमती तीर, जहाँ बसे पीतम्बर पीर। वाह वाह क्या खूब गाता है
वाह वाह क्या खूब गाता है हर का नाम मेरा मन पावता है। नारद सारद करे खवासी पास बैठी बीबी कवला दासी कंठे माला जेहवाना सहंस नाम ले करो सलाम। कहत कबीर राम गुण गावो कहत कबीर राम गुण गावो हिंदू तुरक दो समझावो हिंदू तुरक दो ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।